आइज़िया 40 चैप्टर 41 चैप्टर पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर हिंदी में पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 40 अध्याय 41 अध्याय PSI बाइबल में से। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। कम ऑन माय लॉर्ड, आपके काम है खुदा परमेश्वर। भूल जाएंगे हम कि अगर हम पढ़े तो कुछ है इसमें। वी विल फॉरगेट फादर। वी नो ओनली वन थिंग, सिर्फ एक बात हम जानते हैं, अगर तूने ये पढ़ाया तो कुछ है इसमें। अगर तूने ये नहीं पढ़ाया तो हम इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। और क्या कहूँ पवित्र आत्मा, आप काम कीजिए, पढ़ाइए हमको ये वचनों को, हमें फिट एंड फिक्स करो, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आओ, उन कामों के लिए तैयार करो जो आप हम में से करना चाहते हैं। हमारे गलतियों को सुधारने वाले वचन, हमें रास्ते बदल कर चलाने के लिए मार्गदर्शन, हमें तसल्ली देने के लिए और हमारे सलाह मशविरा होने के लिए हमारी सहायता कीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन। एंड वी लव यू होली स्पिरिट, एंड वी लव यू होली स्पिरिट। यस लॉर्ड, I love you, Holy Spirit. I love you. You are my God. You are my Savior. You are my all in all. You are my Redeemer. You are my refuge, my fortress, my stronghold, my everlasting, ever caring, never going to give up on me. Always with me. My all possibilities. My God, I thank you, Holy Spirit. I thank you for coming into my life and filling me with you. Thank you, Jesus. Thank you, Abba. Thank you. In Jesus' name, amen, amen, amen. हम पढ़ेंगे आइज़िया 40 चैप्टर 41 चैप्टर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। गॉड सेंड्स कंफर्ट टू हिज पीपल, प्रीचिंग ऑफ जॉन बैप्टिस्ट, omnipotence of God, none like him. He giveth proven to the faint. He giveth power to the faint, not proven, giveth power to the faint. ये इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा, अब वचन से पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। कंफर्ट ये माय पीपल सेड योर गॉड, स्पीक ये कंफर्टेबली to Jerusalem and cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, for she hath received of the Lord's hand double for all her sins. The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken it. The voice said, Cry. And he said, What shall I cry? All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field. The grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely the people is grass. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. O Zion, that bringest good tidings, get thee up into the high mountain. O Jerusalem, that bringest good tidings, lift up thy voice with strength. Lift it up, be not afraid. Say unto the cities of Judah, Behold your God. Behold,
The Lord God will come with strong hand, and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his work before him. He shall feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm, and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. Who hath measured the waters in the hollow of his hand, and meted out heaven with the span, and comprehended the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales, and the hills in a balance? Who hath directed the Spirit of the Lord, or being his counselor hath taught him? With whom took he counsel, and who instructed him, and taught him in the path of judgment, and taught him knowledge, and slaved to him the way of understanding? Behold, the nations are as a drop of a bucket, and are counted as the small dust of the balance. Behold, he taketh up the isles as a very little thing, and Lebanon is not sufficient to burn, nor the beasts thereof sufficient for a burnt offering. All nations before him are as nothing, and they are counted to him less than nothing and vanity. To whom then will ye liken God? Or what likeness will ye compare unto him? The workman melteth a graven image, and the goldsmith spreadeth it over with gold, and casteth silver chains. He that is so impoverished that he hath no oblation chooseth a tree that will not rot. He seeketh unto him a cunning workman to prepare a graven image that shall not be moved. Have ye not known? Have ye not heard? Hath it not been told you from the beginning? Have ye not understood from the foundations of the earth? It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in, that bringeth the princes to nothing. He maketh the judges of the earth as vanity. Yea, they shall not be planted, yea, they shall not be sown, yea, their stock shall not root in the earth. And he shall also blow upon them, and they shall wither, and the whirlwind shall take them away as stubble. To whom then will ye liken me, or shall I be equal? Saith the Holy One. Lift up your eyes on high, and behold, who hath created these things, that bringeth out their host by number? He calleth them all by names, by the greatness of his might, for that he is strong in power, not one faileth. Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, my way is hid from the Lord, and my judgment is passed over from my God? Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Chapter 41. God speaks of his merciful providence in regard to his church. The vanity of idols. First verse से पढ़ेंगे. Keep silence before me, O islands, and let the people renew their strength. Let them come near, let them speak, let us come near together to judgment. Who raised up the righteous man from the east?
called him to his foot, gave the nations before him, and made him rule over kings. He gave them as the dust to his sword, and as a driven stubble to his bow. एक सेंटेंस को ध्यान रखिए. He gave them as the dust to his sword. ठीक है. He gave them as the dust to his sword. ओके. एक प्रकार का शक्ति यूज़ किया जाता है जो आपके शरीर का कुछ भी मटेरियल या कुछ भी चीज़ या कैसे भी, ओके, या जो भी इवन आप चलते हैं तो आपके पैरों के मिट्टी, ओके, तो ये सब लेके तलवार के ऊपर यूज़ किया जाता है, चाकू या छुरे के ऊपर यूज़ किया जाता है. ओके, तो आपने क्या करना है, पहले तो आप दुधारी तलवार लिए हुए, ध्यान रखिए वचन दुधारी तलवार है, देश मारना है अच्छे से वचन के साथ, और फिर वो सारा चीज़ जो आपका लिया हुआ रहेगा उसको डिस्कनेक्ट करना है ईवल वेपन्स में से, हर एक ईवल हथियार में से, हर एक ईवल चीज़ों में से, हर एक दुष्टता के चीज़ों में से आपने उसको डिस्कनेक्ट कर देना है. ओके, देखिए ये सारी चीज़ें पवित्र बाइबल बताता है तभी हमको मालूम पड़ता है, हम उसे देखे नहीं हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये देखा है कि जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं पवित्र आत्मा के प्रकाशन में से मुझे जो आता है मैं वो उससे बोलती हूँ. मैं सोच में पड़ जाती हूँ, मैंने तो ये कभी देखा नहीं था, मैंने तो कभी ये जाना नहीं था, ये क्या मैंने प्रार्थना कर दिया है, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि ये वही था जो चल रहा है जगत के अंदर. ठीक है, तो इस प्रकार से आपने दुष्टता के रास्तों से अपने आप को छुड़ा लेना है. He gave them as the dust to his sword and as a driven stubble to his bow. ये वेपन्स है और ये वेपन्स काम करने के लिए हमको उसके साथ कनेक्ट किया जाता है. ठीक है, तो इसके लिए हमने अपने आप को भी डिस्कनेक्ट करना है और वो वेपन्स को भी हमारे वेपन से तोड़ना है. आपके पास अलग अलग वेपन्स से तोड़ने के लिए, आप वर्शिप से तोड़ सकते हैं, आप प्रार्थना से तोड़ सकते हैं, आप परमेश्वर के वचन बोलकर तोड़ सकते हैं. आपने वेपन्स तोड़ना है. दुष्ट आत्मा के जगत में जो हथियार है मौजूद, फिजिकल हथियार है, फिजिकली जो हथियार है, ओके, फिजिकली हथियार के साथ आपको इस प्रकार से बंधुआई करके रखा जाता है. आपने उस वेपन को तोड़ देना है. ओके, आपको फिजिकली जो हथियार लोगों के जीवनों के अंदर रखे हुए हैं, जो आपके विरोध काम करने के लिए लाकर रखे गए रहते हैं, आपने उसको वर्शिप से तोड़ सकते हैं, प्रार्थना से तोड़ सकते हैं, बाइबल रीडिंग से तोड़ सकते हैं, उपवास प्रार्थना से तोड़ सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से वचनों को बोल कर तोड़ सकते हैं. ओके, लेकिन आपको ये सारे हथियार तोड़ना चाहिए जो भी दुष्ट के जगत में है, तोड़ना ज़रूरी है. ठीक है. He pursued them and passed safely, even by the way that he had not gone with his feet, who hath wrought and done it, calling the generations from the beginning, I the Lord, the first and with the last, I am he. The isles saw it, and feared, the ends of the earth were afraid, drew near and came. They helped everyone his neighbor, and everyone said to his brother, Be of good courage. So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smootheth with the hammer him that smote the anvil, saying, It is ready for the soldering. And he fastened it with nails, that it should not be moved. But thou, Israel, art my servant, Jacob, whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend. हालेलुया. देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने द सीड ऑफ अब्राहम को भी उसने फ्रेंड कहा था, लेकिन द सीड ऑफ अब्राहम यानी आइजैक,
आइजैक के बाद प्रभु यीशु मसीह के बाद अब हम परमेश्वर के मित्र बन चुके हैं। Hallelujah. Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant, I have chosen thee, and not cast thee away. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Hallelujah. Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing, and they that strive with thee shall perish. Thou shalt seek them, and shall not find them, even them that contended with thee. They that war against thee shall be as nothing, and as a thing of naught. For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not, I will help thee. Fear not, thou worm Jacob, and ye men of Israel, I will help thee, saith the Lord, and thy Redeemer, the Holy One of Israel. Behold, I will make thee a new sharp threshing instrument, having teeth. Thou shalt thresh the mountains, and beat them small, and shalt make the hills as chaff. Thou shalt fan them, and the wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them. And thou shalt rejoice in the Lord, and shalt glory in the Holy One of Israel. When the poor and needy seek water, and there is none, and their tongue faileth for thirst, I, the Lord, will hear them. I, the God of Israel, will not forsake them. I will open rivers in high places, and fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water, and the dry land springs of water. I will plant in the wilderness the cedar, the shittim tree, and the myrtle, and the oil tree. I will set in the desert the fir tree and the pine and the box tree together, that they may see and know and consider and understand together that the hand of the Lord hath done this, and the Holy One of Israel hath created it. Produce your cause, saith the Lord. Bring forth your strong reasons, saith the King of Jacob. Let them bring them forth, and show us what shall happen. Let them show the former things, what they be, that we may consider them, and know the later end of them, or declare us things far to come. Show the things that are to come hereafter, that we may know that ye are gods. Yea, do good, or do evil, that we may be dismayed, and behold it together. Behold, ye are of nothing, and your work of naught. An abomination is he that chooseth you. I have raised up one from the north, and he shall come from the rising of the sun, shall he call upon my name. And he shall come upon princes as upon mortar, and as the potter treateth clay. Who hath declared from the beginning, that we may know, and before time, that we may say, He is righteous? Yea, there is none that sheweth. Yea, there is none that declareth. Yea, there is none that heareth your words. The first shall say to Zion, Behold, behold them, and I will give to Jerusalem one that bringeth good tidings. For I have beheld, and there was no man, even among them, and there was no counselor, that when I asked of them could answer a word. Behold, they are all vanity, their works are nothing, their molten images are wind and confusion. Hallelujah. जब आप बोलते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ तो है, कुछ तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? उनके खुदी हुई मूर्तें आपके विरोध में काम कर रहे होते हैं। ठीक है,
ये उनका रिजल्ट रहता है, वो विंड और कंफ्यूजन्स को रिलीज करते हैं। यशायाह की भविष्यवाणी 40 अध्याय 41 अध्याय हम पढ़ेंगे, DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। प्रत्येक चाल चलन के लिए, प्रत्येक गुणों के लिए, प्रत्येक उठने बैठने चलने फिरने के लिए तेरे वचन के अलावा हमारे समझ में और कुछ भी ना रहे खुदा। सब कुछ तेरे वचन में कंप्लीटली कवर्ड हो जाए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, हमें वचन सिखा खुदा, ताकि हम जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ऑर्डरलीनेस में आ सके, फिट एंड फिक्स हो सके। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। सांत्वना के वचन 40 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी को पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा। आपको पता है मैं प्रार्थना क्या करती हूँ वचन के बारे में? ये प्रार्थना, इसका कारण ये है, मैं क्या बोलती हूँ, हमको ईश्वरीय व्यवस्थितपन में लेकर आ, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, ऐसा मैं बोलती हूँ, है ना। और मैं बोलती हूँ फिट एंड फिक्स कर हमको, है ना। तो हमारे पाप माफ़ होने के बाद में, हम परमेश्वर के अंदर आने के बाद में हमें फिट एंड फिक्स होने की प्रार्थना मैं ये वचनों के कारण करती हूँ, 3-4 वचन। क्योंकि जब परमेश्वर कुछ बातों को माफ़ कर दिया, दंड माफ़ कर दिया, हर अधर्म का दंड हमारे अंदर से अब रोक दिया गया, तो अब हमारा होता है कि अभी हमको परमेश्वर के डिवाइन व्यवस्थितपन में रचना होकर तैयार हो जाना है, और वो केवल पवित्र आत्मा कर सकता है। ठीक है, ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? सबसे पहले हमको शांति मिलने के लिए आज्ञा दिया। ठीक है, दूसरे हमको शांति से बातें करेंगे, दूसरे के मुंह से हमारे लिए परमेश्वर के अनुग्रह की बातें सुनने को मिलेगी। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर प्रेशियस, आप अनुग्रह की बातें सुन रहे। आप जब किसी को बोलते हैं जीसस लव्स यू, यानी आप उनको शांति की बातें दे रहे हैं, आप उनको डिवाइन फेवर दे रहे हैं, ईश्वरीय कृपा दृष्टि आप उनको दे रहे हैं। क्योंकि किसने कमांड किया आपको ऐसे बोलने के लिए? उनके ऊपर परमेश्वर ने कमांड किया। ओके, कि मैंने जगत का पाप अभी खत्म कर दिया है, पाप खत्म हो गया है, जगत के अंदर अब पाप का राज्य नहीं है। पाप मौजूद है लेकिन पाप का राज्य नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे अंदर अब शांति का राज्य है। तो हम क्या देते हैं लोगों को? शांति के शब्द देते हैं, शांति का व्यवहार बनाते हैं, शांति के द्वारा हम उनके संगति में हो जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है? ये डिवाइन कमांडमेंट है हमारे ऊपर कि अब जाके दुनिया को शांति दे दो, अब जाके दुनिया को परमेश्वर का प्रेम दे दो, अब जाके दुनिया को परमेश्वर का कृपा दृष्टि दे दो। ओके, बिना सोचे समझे, जैसा तुमने सेत में पाया है वैसा तुम दूसरों को सेत में दे दो। ओके, जैसा तुमको परमेश्वर ने बिना नाप तौल के दिया, वैसा परमेश्वर कहता है कि तुम जाके जगत को बिना नाप तौल के दे दो। हालेलुया। ये तरह से हम जब भी किसी को मसीह के हृदय से इंटरैक्ट करते हैं,
कम्युनिकेट करते हैं, हमारे द्वारा कुछ भी हलचल हम करते हैं, तो उनके लिए वो क्या है, परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर आज्ञा हो चुकी है कि हम पर आज्ञा हो चुकी है कि हम उनको शांति देना है, हम उनको अनुग्रह से जिलाना है। हालेलुया। हम उनको ब्लेस करना है, हम उनको परमेश्वर के कृपा दृष्टि फेवर को रिलीज करना है। आमीन। तो इस प्रकार से परमेश्वर पहले हमारे ऊपर बोल छोड़ देता है, बोल दे देता है, शब्द दे देता है, लोग आके हमको उस शब्दों से सेवा करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तसल्ली देते हैं। हमारे कठिनाई समय हमारा ख़त्म होने लगता है, हमको सब कुछ अच्छा मिलने लगता है, सब कुछ ठीक ठाक होने लगता है। तो क्या किया परमेश्वर ने, किसी को तो कमांड किया, जाओ उनके लाइफ में ठीक तरह से सब कुछ कर दो, बोलना शुरू करो, प्रार्थना शुरू करो, उपवास करो उनके लिए। ओके, घुटने लगाओ परमेश्वर के सामने और मांगो उनके लिए। हम पर कमांड हो जाती है। ओके, और हम कमांड के अनुसार फिर उन लोगों के लिए अपना परिश्रम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत ये 3 वचन से आगे करना शुरू करते हैं। ओके, इसके लिए मैं कहती हूँ कि डिवाइन ऑर्डरलीनेस दे परमेश्वर, अब हम में तेरा फिट एंड फिक्स कर तेरे वचनों को हमारे अंदर, तब ये काम इनविजिबल रियाम में से परमेश्वर की सेना हमारे जीवन में करती है। हालेलुया। ये 6 वचन से आगे देखेंगे। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निस्संदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारा परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। तो ये कंटेनर्स है, हम लोग कंटेनर्स है, हमारे अंदर कुछ खास बात नहीं है। ओके, हमारा रंग ढंग चाल ढाल कुछ भी खास नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म होने वाली बातें हैं, सब कुछ। आज बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, कल बहुत सारा नफरत भरा रहेगा। ओके, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। आज बहुत फलता फूलता दिखेगा, कल सब कुछ मुरझा गया दिखेगा, कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। ओके, हम सिर्फ कंटेनर है जिसके अंदर परमेश्वर का जब वचन आ जाता है, तब हमारे अंदर के आनंद बरकरार रह जाते हैं, हमारे अंदर की सुंदरता बरकरार रह जाती है। ओके, हमारे अंदर का चाल चलन बरकरार हो जाता है। ओके, हमारे अंदर के हर एक ब्लेसिंग बरकरार हो जाती है। क्या है रूट, क्या है परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर घर कर लेता है, जड़ पकड़ लेता है, तब हम फ्लरिश होने लगते हैं। ओके, जब तक परमेश्वर का वचन हमारे अंदर घर नहीं किया है, तब तक हमारा जो कुछ भी है वो सिर्फ एक ड्रामाबाजी हो जाता है। ओके, एक जस्ट एक नकाब चढ़ाया हुआ मसीह रहता है, वैसा हो जाता है। ओके, तो वैसा नहीं, जब परमेश्वर का वचन जड़ ले लेता है हमारे अंदर, रूट पकड़ लेता है हमारे अंदर, ख़त्म। वो इंसान फिर इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में लिखा है, ऐसी स्त्री जो धार्मिकता का और परमेश्वर का भय रखने वाली है, उससे बढ़कर सुंदर और उससे बढ़कर बहुत ज़्यादा चाहत रखने योग्य कोई ब्यूटीफुल वुमन नहीं है। हालेलुया। अब वो स्त्री के बारे में कहा है, लेकिन हाँ, यहाँ पे हम उसको इस प्रकार से लेना है, हर एक मसीह के बारे में लिखा है। ओके, तो उनके कलर मायने नहीं करते, उनका शरीर मायने नहीं करता है, उनकी सुंदरता, उनका गुण, उनके अंदर परमेश्वर का वचन मायने करता है। जड़ पकड़ा हुआ परमेश्वर का वचन, खत्म बात। द पर्सन इज द बेस्ट पर्सन and the beautiful and the very most awesome person on this earth. Amen. ये उसका कारण है मसीहों का, कि हम सदा सर्वदा फलते हुए और फूलते हुए, कभी ना मुरझाने वाले ऐसे फलदायी लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर। हम नमक स्वाद रखे हुए परमेश्वर के
नमक है, इस पृथ्वी के ऊपर हमें स्वाद रखने के लिए बनाया गया है। ओके, प्रिजर्व करने के लिए रखा गया है। 9 वचन से देखेंगे आगे। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। ओके, ऊंचे शब्द से सुना और खास तरीके का एक शॉट मार दिया है, मत डर, है ना। तो इसका मतलब है ऊंचे शब्द को डरना पड़ता है। है ना। तो ऊंचे शब्द को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ऊंचे शब्द को दबा दिया जाता है, ऊंचे शब्द को डरा दिया जाता है। चुप कर, आवाज मत कर, नीचे कर आवाज। ओके, तो परमेश्वर क्या कहता है? ऊंचा शब्द सुना, ऊंचे शब्द से बोल, और फिर एक काम और भी कर, डर मत। ओके, यानी ऊंचा शब्द एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ये वचन भी कहता है ना। तो हमारा ऊंचे से गॉस्पल के वचन लगाना, ऊंचे से चर्च की आवाज़ें लगाना, ऊंचे से गीतों को गाना, ऊंचे से म्यूजिक्स को लगाना, ऊंचे से कुछ भी अगर करने जाएंगे तो पीछे से एक हमला आता है डर का। ओके, और परमेश्वर क्या कहता है? मुझे पता है ऊंचे को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ डर मत। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, यहूदा के नगरों से कहे अपने परमेश्वर को देखो। ओके, तो ऊंचे आवाज से हम क्या कर रहे होते हैं? हम ये मैसेज दे रहे होते हैं, हमारे परमेश्वर को देखो। ओके, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने को की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। हालेलुया। ओके, तो हम ये बातें ऊंचे में लगाने से, ऊंचे आवाज़ में प्रचार लगाकर, ऊंची आवाज़ में ऑनलाइन चर्च को लगाकर, ऊंची आवाज़ में गीतों को लगाकर हम क्या बोल रहे होते? देखो, ये हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और जब हम ऐसा कहेंगे, देखो ये हमारा परमेश्वर है, ऊंचे आवाज़ में, तो हमको स्वीकारा नहीं जाता है। ओके, हमको स्वीकारा नहीं जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है उनके स्वीकारे, आपको स्वीकारा नहीं जाता है, ये आप जानते हो, तो अब इसके बारे में आपको डर आ जाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता है वो स्वीकारेंगे नहीं आपको। फिर अभी आपको क्या करना है? मत डर। ओके, तो हमको डर हटा देना पड़ता है, और फिर ऊंची आवाज़ में परमेश्वर कौन है दिखाना पड़ता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि लोगों के जीवन बंधुआई में पड़े हैं, उनको परमेश्वर की ज़रूरत है, उनकी अवस्था बदलने की ज़रूरत है, उनके पीढ़ियों के श्राप उनको मारने के लिए रुके हुए हैं। ओके, उनके पीढ़ियों की गलतियां उनको पकड़ने के लिए रुकी हुई है। ओके, उनके लिए फंदे फांसे लगे हुए हैं, वो देख नहीं रहे, वो समझ नहीं रहे, वो अंधे आंखों से है, इसके लिए उनको परमेश्वर की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं? ऊंची आवाज़ में ऐसे रिकॉर्ड्स चला के हम क्या करते हैं? फिर परमेश्वर को देखो, हम बताते हैं, देखो देखो परमेश्वर को, ताकि तुम बचाए जाओ। हालेलुया। ताकि तुम बचाए जाओ। हालेलुया। ताकि तुम बचाए जाओ। ओके, तुम अपने अंदर से अपने पीढ़ियों के श्राप में मारे ना जाओ। हालेलुया। तुम अपने अंदर से अपने दुश्मनों के हाथों से मारे ना जाओ। ओके, तुम अपने अंदर से अपने ही घर के लोगों के दुश्मनी करके, अपने ही घर को तोड़ फोड़ करके, अपने ही परिवार में फूट डालकर आप अलग ना हो जाओ। हालेलुया। हम इसके लिए ऊंची आवाज़ में उठाते हैं परमेश्वर के नाम के सब बातों को, प्रचार हो, गीत हो, कुछ भी हो, और कहते देखो ये परमेश्वर है। हालेलुया। ओके, और फिर पीछे से एक छोटा सा हल्का सा डर भी एंट्री कर जाता है। ओके, तब हमको परमेश्वर का वचन लेना पड़ता है, मत डर। ओके, आगे पढ़ेंगे हम 11 वचन।
वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार के लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो वो संवेदनशील है। ओके, वो संवेदनशील है, वो सेंसिटिव है, वो समझता है किसको क्या ज़रूरत है, वो समझता है। ओके, वो ढीठ गड़बड़ियाँ करने वाला नहीं है, वो समझता है किसकी क्या ज़रूरत है। ओके, उस प्रकार से वो हमको चलाता है। अगर आप समझो सो रहे हैं और आपका दुश्मन आपके ऊपर अटैक करने के लिए तैयारी कर लिया है, आपको नहीं पता है। अब अगर मुझे पता चला और मैंने आके ज़ोर से रिकॉर्ड लगा दिया, ये ढपक 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 वचन के गीत वाले रिकॉर्ड लगा दिए, अब आप सो रहे हैं। ओके, देखने वाले क्या सोचेंगे, ये क्या लोग हैं, ये थोड़ा भी इनको फिक्र नहीं है, ये बड़े कठिन हृदय के हैं, निर्दयी लोग हैं, बड़ा दुष्टता है इनके अंदर, ये इंसान सोया हुआ है और यहाँ पे ढपक 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 रिकॉर्ड्स शुरू कर दिए। ये इंसान पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पे ढपक 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 शुरू कर दिया। ओके, लोग समझते नहीं है कि उनके ऊपर अटैक रिलीज हो रहा है और हम उनको बचा रहे हैं। हालेलुया। वो नींद ज़रूरी नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, वो कामकाज ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस समय उनका शत्रु उनका आहेर करने के लिए, उनके ऊपर झपट लगाने के लिए तैयार होके आ रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबांता शराबाखासियांस कुंबराखास्ते लाहकोतीन लल्लबहा अखासे बहकतीन रबहा अश्कर बखतीन रबहांतरा। वो संवेदनशील परमेश्वर है, वो संवेदनशील परमेश्वर है। कभी भी आपको वो गिरने के लिए, तड़पने के लिए नहीं है, वो उठाकर आपको स्थिर करने के लिए। हालेलुया। वो संवेदनशील है, वो बहुत बड़ा संवेदनशील परमेश्वर है। शबियान दुखम रखा सियास खुल रखा से तीन रबहांतरा। उसको आप तोल मोल मत कीजिए, कौन से समय में ये लोग क्या करते हैं आप नहीं समझ सकते हैं उनको। ये परमेश्वर के काम आप नहीं समझ पाएंगे। बेहतर होगा आप चुप रहे। ये चाहे दिन में उठकर प्रार्थना करे या रात में उठकर प्रार्थना करे, ये चाहे दिन में उपवास करे, रात में उपवास करे, जहाँ जो चाहे जैसा करे, क्योंकि जैसे हवा कहाँ से आती है कोई बता नहीं सकता है, वैसे ही हम मसीहों का है जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं। ओके, हम कभी क्या करेंगे हम बोल नहीं सकते, हम कभी कौन सा फैसला उठाएंगे बोल नहीं सकते हैं, आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं, आप उसके बारे में कोई भी फैसला नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं। ओके, आप ना उनको भला कुछ कर सकते हैं और ना बुरा कुछ कर सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से चलने वाले लोग हैं। हमारा परमेश्वर हमारे रास्ते बनाता है। हम कौन से समय क्या करते हैं हमारा न्याय कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं। ओके, हमें कोई नहीं बोल सकता है कि हम ऐरे गहरे हैं, कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि कोई हमको समझ ही नहीं सकता है कि हम कौन हैं। हालेलुया। हम छुपाए गए हैं परमेश्वर के चरित्र में। ओके, तो हम क्यों ऐसा करते हैं आप नहीं बता सकते हैं, हम क्यों ऐसे लोग हैं आप नहीं समझ सकते हैं। ओके, हम जो भी है आप सबके भलाई के लिए है, इतना ही हम बोल सकते हैं। हम कभी भी आपके दुश्मन नहीं है, हम सब कुछ हम भलाई में बदल देने वाले लोग हैं। रिबा खासियांस खुलबरांतरा खासा ईदान ओबोको शराखा से, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है कहाँ पर क्या होना ज़रूरी है और हम वैसा करते हैं। हालेलुया।
कभी मैं ये रूम में रिकॉर्ड लगाती हूँ, कभी यहाँ बंद करती हूँ वहाँ लगाती हूँ, कभी वहाँ बंद करती हूँ उधर लगाती हूँ, कभी मैं उधर से इधर हो जाती हूँ, कभी मैं दिन में खा लेती हूँ रात में सो लेती हूँ, कभी मैं दिन भी नहीं सोती हूँ रात भी नहीं सोती हूँ, प्रार्थना करते रहती हूँ। एवरीथिंग एवरीथिंग मनुष्य दिमाग के एकदम बाहर है, वो मुझे समझ नहीं सकता है और अंदाज नहीं कर सकता है एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसके साथ। ओके निश्चित तरीके से समझे क्या इसके बारे में। ओके ये कोई नहीं बता सकता है, केवल परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से हम लिए हुए चल रहे होते हैं। ओके हमारा न्याय नहीं कर सकता है कोई। हालेलुया। रिबांता शराबा खासी खुम्ब रखा से जिहा खुबल्ला रहा अखात किन खोल्ला रहा अखा से। Father, I thank you, Abba. I thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, तेरे नाम को ऊंचा करती हूँ मैं। तू खुदा परमेश्वर और मेरे अंदर का कुछ भी नहीं है, सब कुछ तू मेरे यीशु। नासरी यीशु के नाम में हमें आगे और वचन सिखाने की हम तुझसे विनती करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर कि हम और भी इन वचनों को समझ सकें, यीशु नासरी के नाम में। आमीन आमीन आमीन। इज़राइल का अतुलनीय परमेश्वर। 12 वचन से आगे। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है? देखो, जातियां तो डोल में की एक बूंद या पलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो, वह द्वीपों को धूल के किन को सरीखे उठाता है। लबानोन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस न होंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी है। हालेलुया। ध्यान रखिए ये 17 वचन। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, अगर आप परमेश्वर की संतान नहीं है और पवित्र आत्मा की भरपूरी भी आपके अंदर नहीं है, अंदाज लगाना छोड़ दो हमारे बारे में। हम क्यों ऐसे हैं और हम कब क्या कैसे करते हैं। आप चकराते रहोगे, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि हमको कोई कहीं से भी उसके दिमाग से समझ नहीं सकता है। केवल पवित्र आत्मा का भरा हुआ इंसान ही हमको समझ सकता है। हालेलुया। तो हमको ना ही आप कैरेक्टर में कुछ सोचने की कोशिश करो, ना ही हमारे कोई चाल चलन में, या ना ही हमारे कोई काम करने के तरीकों में। सब कुछ हमारा परमेश्वर के अंदर छुपा हुआ है। हालेलुया। 18 वचन से आगे। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे कि उसकी उपमा किससे दोगे? मूरत कारीगर ढलता है, सोनार उसको सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी के संकले ढाल कर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो न घूने। तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वह हिल न सके।
क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तन देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वे रोपे ही जाते, वे बोए ही जाते, उनके ठूंठ भूमि में जड़ ही पकड़ ले पाते कि वह उन पर पवन बहाता और वे सूख जाते और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती है। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थ्य और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तो क्यों कहता है इस्राएल तो क्यों बोलता है मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है? मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। देखा, इसके लिए हमारे कोई भी हमारे प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे सब कुछ परमेश्वर जानता है। 28 वचन, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। इज़राइल को परमेश्वर का आश्वासन 41 अध्याय पहले वचन से, हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है? वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वह अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी न चला था, बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश कांप उठे और निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हियाव बांध। बढ़ई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हियाव बंधा रहा है, जोड़ तो अच्छा है, अतः वह कील ठोंक ठोंक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
14 वचन से आगे, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तो उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मूंडे टीलों से भी नदियाँ और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोबर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति से समझ ले कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। हालेलुया। तो ये डिस्प्ले पर लाता है परमेश्वर हमारे बारे में, कि वो समझ जाए कि हम परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। प्रभु यहोवा की चुनौती 21 वचन से आगे, यहोवा कहता है, अपना मुकद्दमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो। वे उन्हें देकर हमको बताए कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाए। देखो, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता। जो कोई तुम्हें चाहता है वह घृणित है। मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा, वह आ भी गया है। वह पूर्व दिशा से है और मेरा नाम लेता है। जैसा कुम्हार गीली मिट्टी को लताड़ता है, वैसे ही वह हकीमों को कीच के समान लताड़ देगा। किसने इस बात को पहले से बताया था, जिससे हम यह जानते? किसने पूर्व काल से यह प्रकट किया, जिससे हम कहे कि वह सच्चा है? कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनने वाला नहीं। तुम्हारी बातों का कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं ही ने पहले सियोन से कहा, देख, उन्हें देख। और मैंने यरूशलेम को एक शुभ समाचार देने वाला भेजा। मैंने देखने पर भी किसी को न पाया, उनमें कोई मंत्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके। सुनो, उन सबों के काम अनर्थ है, उनके काम तुच्छ है और उनकी ढली हुई मूर्तियाँ वायु और मिथ्या है। हालेलुया। देखो, मूर्तियाँ वायु और मिथ्या है, इसका मतलब मूर्तियों का पावर क्या है? हवा और कंफ्यूशंस। ठीक है। मूर्तियों में कौन बैठता है? स्पिरिट्स और कंफ्यूशंस। ठीक है। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हमें मूर्तियों से बचा खुदा, उनके अंदर बैठने वाले वायु और मिथ्या में से हमको छुड़ा। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। हर तलवार, हर हथियार जिसके ऊपर हमारी धूल लगी हुई है, नासरी यीशु के नाम से वो बंधन में से हमको छुड़ा खुदा। नासरी यीशु के नाम से वो शैतानी हथियार तोड़ दे जिसके ऊपर हमको रखा गया है। हर वो हथियार तोड़ दे खुदा जिसके ऊपर हम ठहरे हुए हैं, जो शत्रु की ओर से लगाया हुआ हथियार है। हमें उस हथियार पर से उतार दे खुदा और वो हथियार तोड़ दे। हमारे लिए ये काम कर, हम नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर।
धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 4 चैप्टर 1 वर्स से 9 वर्स, 1 किंग्स 10 चैप्टर 11 चैप्टर। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 वचन से 9 वचन, पहले राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय 11 अध्याय। हम पढ़ेंगे अकेले में बैठकर, अपने व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में इसको पढ़ेंगे। जब हम अपने पर्सनल टाइम में से पढ़ रहे होते हैं तो हमारे अंदर से परमेश्वर इन वचनों के भेद जाहिर करेगा। उसका आत्मा हमें दिया गया है जो हमें इस वचन को पढ़ने का आनंद उठा कर देता है, और हम परमेश्वर चाहता है उस प्रकार की सिद्धता में पहुंच जाएंगे और हमारा इस्तेमाल परमेश्वर कर पाएगा। हालेलुया। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा हमारे अंदर हमें ये वचनों को पूरा करने का सहायता कर रहा है। निश्चित हमने परमेश्वर का वो सिद्ध अवस्था में पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा का, हमने अनुग्रह के आत्मा का, सच्चाई के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं आबा फादर, वी थैंक यू आबा, वी थैंक यू। आपने हमें फिट एंड फिक्स किया। परमेश्वर चाहता है उस व्यवस्थितपन में हमको लाया। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। यह धन्यवाद की प्रार्थना हम नासरी यीशु मसीह के नाम में करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।